اپنے رازوں کی حفاظت کرنا ذہنی سکون اور اپنی عزت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے اندر ہی دفن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کب کون سی بات تانا بن کے ہمارے سامنے آ جائے، ہماری کمزوری کا لوگ فائدہ اٹھا لیں، ہمارے سگے بہن بھائی، ہمارے اپنے ہی نہیں پتہ چلتا، پھر وہ بات سے زیادہ وہ جو چیزیں پلٹ کے واپس آتی ہیں وہ زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ 4 لوگ 40 باتیں 400 افواہیں، کس کس کا منہ روکو گے؟ تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے ہی راز نہیں رکھ سکتے تو ہم سامنے والے سے کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے راز رکھے؟ ہم خود ہی دوسروں کے منہ میں اپنی باتیں ڈال دیتے ہیں، پھر گھر گھر میں ہماری باتیں نشر ہوتی ہے، جب پلٹ کے واپس آتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو زندگی کے بہت سارے ایسے دکھ سکھ ہیں جن کو ہم نے خود برداشت کرنا ہے، ہمت کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنے اندر ہی دفن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں اگر ہم اتنی ہمت نہیں نہ کریں گے کہ اپنے اندر چیزیں دفن کرنا، اپنے راز چھپانا، تو پھر لوگوں کے سامنے صرف ہمارا تماشا ہی بنے گا۔ بہت مشکل ہوتا ہے، ہمیں کسی سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ سب کے سامنے کھول کے اپنی باتیں رکھ دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں صحیح مشورہ دے دے، لیکن بہت جگہ پہ خود کو مضبوط بنا کے بہت ساری چیزیں اپنی راز میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہی ہم اس دنیا میں ایسے لوگوں کے بیچ میں، ایسے رشتوں کے بیچ میں ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو وہ کون سی باتیں جو آپ نے اپنے سگے بہن بھائیوں سے بھی نہیں کرنی، میں کہتی کسی سے بھی نہیں کرنی، کیونکہ یہ جو میں باتیں آپ کو بتانے والی ہوں اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اس میں اگر آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں تو وہ بھی آپ کی اپنی، اگر دکھ ہیں تو وہ بھی آپ نے ہی سامنا کرنا ہے، تو پھر بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ کون سی ایسی باتیں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو مکمل میرا ساتھ دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ویڈیو میں وہی ہے میری روٹین دیکھیں گے، گھر کے چھوٹے موٹے کام، ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن جناب ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ میں اور آپ ہم ایک رابطے میں رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں اور ان کا کوئی حل نکال سکیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، تو اس لیے اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنوں کے ساتھ مخلص ہو کر چلیں۔ باقی کوئی سامنے والا کون سی چلاکیاں کر رہا ہے، کون سی چیزیں کر رہا ہے، وہ اس کا مکافات عمل ہے، وہ اس نے سہنا ہے۔ اپنی طرف سے کوشش کریں۔ میں کہتی ہوں کہ جب میں کسی کو چلاکیاں کرتے، یہ گھریلو سیاست دیکھتی ہوں نا، تو میں سوچتی ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہم کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ موت آنی ہے، ہم نے مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیوں اس یقین پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، یہ چیزیں کھانا پینا یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جب میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو سگے بہن بھائیوں سے کون سی باتیں آپ نے شیئر نہیں کرنی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اپنے رشتوں سے آپ نے دور ہونا ہے۔ مخلص ہو کے اپنے رشتے نبھانے کی کوشش کریں، سامنے والا جو بھی آپ کے ساتھ کرے آپ اپنی طرف سے 100% دیں، اپنی لیمٹس میں رہ کے، اپنی حدود میں رہ کے۔ رشتوں سے دور ہو کر اکیلے انسان کتنی زندگی گزار سکتا ہے اور کیسی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کھیلیں، اٹھیں، بیٹھیں، ہنسیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشکل تکلیف میں ساتھ دیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو آپ نے نہیں شیئر کرنی، خاص طور پہ شادی کے بعد، کیونکہ شادی سے پہلے تو ہم میکے میں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے ایک دوسرے کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، نہ بھی پتہ ہو تو امی ابو کے پاس جب بات پہنچتی ہے تو وہاں سے گھما کے آ ہی جاتی ہے۔ تو سسرال میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے بہن بھائیوں سے کون سی باتیں شیئر نہیں کرنی۔ سب سے پہلی بات، کبھی بھی اپنے اور اپنے شوہر کے ریلیشن کو ڈسکس نہ کریں۔ اب میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں آپ کو، میاں بیوی ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ناراضگی بھی ہونی ہے، صلح بھی ہونی ہے، اونچ نیچ ہر چیز ہوتی ہے۔ اگر یہی چیزیں جا کے آپ بہن بھائیوں کے بیچ میں ڈسکس کرو گے نا، بہت ساری ایسی عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ادھر بات ہوئی ادھر فون کر کے فوراً سے سب کو بتا دیا میرا شوہر ایسے کر رہے، میرا شوہر ایسے کر رہے۔ صلح تو ہونی ہے، ایک دن بعد ہو جائے، 24 گھنٹوں کے اندر۔ میں تو کہتی ہوں کہ پورا دن گزر نہیں نہ دی، جب 2 دن بعد بھی صلح ہونی ہے تو کوشش کریں اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ دیں، اپنے شوہر کو اتنا وقت ہی نہ دیں کہ وہ دوسروں کی باتیں سنیں اور پھر اس پہ عمل کریں، جب اپنی ایگو کا اتنا مسئلہ بنا لیں، خود پہل کر لیں، تو صلح تو ہونی ہی ہے۔ کبھی بھی اپنے ریلیشن کو کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے شوہر کے بارے میں جو ان کا خیال ہوتا ہے نا، ان کی امیج ہوتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے۔
कल को आपने अपने शोहर को लेके अपने बहन भाइयों के बीच में भी जाना है, अपने मेके में भी लेकर जाना है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो फिर क्या होगा कि एक शख्स आपके लिए 100% नहीं, आपके लिए 50% ही चलो कर रहा है, लेकिन आप अगर गुस्से में आके उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत पे आप बातें कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, उसकी इज्जत पे बातें आ रही हैं, लोग उसको बुरा तसव्वुर कर रहे हैं, जो बुरा समझने लगे आपकी बातों की वजह से जो आपने गुस्से में भी शेयर की हैं, तो इसमें आप ज़्यादती कर रही हैं फिर अपने शोहर के साथ। तो बेहतर है कि कोशिश करें कि अपने और अपने शोहर के रिलेशन को कभी भी अपने बहन भाइयों के बीच में डिस्कस ना करें। और दूसरी बात ये है कि आपको आपके शोहर की आदतों का पता है, आपको पता है कि उसकी क्या नेचर है। हो सकता है कि आप जिस अंदाज में बात कर रहे हो सामने वाला उस तरीके से बात ना समझे, वो अपने तरीके से कोई आपको मशवरा दे दे, और जब आप उस मशवरे पे अमल करने की कोशिश करोगे फिर भी आपका रिलेशन ख़राब होना है। तो बेहतर है कि अपने रिलेशन को अपनी सोच अकल के हिसाब से ना उसको ना सोल्व करने की कोशिश करें, चीज़ें जो ख़राब हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। जब हम 2-3 मशवरे बीच में ले आते हैं ना गुस्से में, ख़ास तौर पे गुस्से में, तो वो चीज़ें ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब होती हैं। कभी भी अपने शोहर का कारोबार, अपने शोहर की आमदनी दूसरों से डिस्कस ना करें। मैं कहती हूँ कि अगर आपका शोहर कम कमा रहा है ना तो उसमें गुजारा करें। आप जाके अपने घर वालों के सामने, जब अपने बहन भाइयों के सामने खुद को बचा रहा है, तसव्वुर करके उनसे 1 सूट ले लोगे, 2 सूट ले लोगे, 3 सूट ले लोगे, जब वो आपके बच्चों को पैसे दे देंगे, वो सारी ज़िंदगी तो आपके साथ नहीं ना पैसे रहने, वो सारी ज़िंदगी तो आप सूट नहीं ना पहनने वाले। कितनी की देर आपके बहन भाई भी आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन खुद को बेचारा तसव्वुर करके ना, बेचारा बना के, कल को आपके हालात ठीक भी हो गए, आपके शोहर की अच्छी आमदनी होगी, या आपने भी साथ कमाना शुरू कर दिया, सपोर्ट करनी शुरू कर दी, लेकिन वही चीज़ें ताना बन जाती हैं कि कल तक तो हमसे लेकर खा रही थी, हमसे लेकर पहन रही थी। ज़ाहिर सी बात भाभियाँ भी इस चीज़ का ताना दे देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं यही चीज़ ना ताने में आ जाती है कि आज किस चीज़ की शौखियाँ मार रहे हो, आज तुम ऐसे कपड़े पहन के हमें दिखा रही हो, कल तक तो हम तुम्हें लेकर दे रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिससे रिलेशन ख़राब होते हैं, बहन भाइयों का रिश्ता भी ख़राब हो जाता है। फिर ज़ाहिर सी बात है, ऐसी बातें सुनने के लिए तो इंसान मेके रहना जाता, फिर आस्ता आस्ता दूर होकर अपने घर में बैठना है। तो कोशिश करें कि शुरू में ही अपनी लिमिट्स को आप मद्देनज़र रखें, उनका ख्याल रखें, कौन सी बात आपने शेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी, कभी भी अपने शोहर की आमदनी। और दूसरी ये साइड भी देख लें कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके शोहर की आमदनी बहुत अच्छी है, आप अपने घर में बहुत खाती पीती हैं, ये चीज़ें जेलसी में, हसद में आ जाती हैं। फिर बहुत सारी, वो कहते हैं ना कि इंसान को कब्र तक और ऊँट को हंडी तक पहुंचा देती है ये नज़र। तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। अगर आप चाहती हैं ना कि मेके में हमेशा आपकी और आपके शोहर की और आपके बच्चों की इज्जत रहे, तो कभी भी अपने ससुराल की बातें आके अपने मेके में डिस्कस ना करें। कुछ ख़वातीन की आदत होती है कि जहाँ पे भी बैठी अपने ससुराल वालों को, अपनी सास को डिस्कस कर लिया, ननदों को डिस्कस कर लिया, उनको डिस्कस करके क्या उन्होंने वो आपके वो मसले मसाइल हल कर देने, कुछ भी नहीं होना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेचारा कह लेंगी, आप पे तरस खा लेंगी, हाय बेचारी बहुत बुरे हालात में गुजारा कर रही है। इसके अलावा तो सुनने वाला कुछ नहीं ना कर सकता, तो क्यों जाके अपने घर के हालात बताने। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आज तक कभी जाके अपने मेके में नहीं बताई। और फिर मैं कहती हूँ कि इंसान का ज़मीर भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जहाँ पे आप खा रहे हो, जिस शख्स के साथ आप रह रहे हो, उसी के घर वालों को आप जगह जगह डिस्कस कर रहे हो। एक ज़मीर की आवाज़ भी तो होती है ना। हर घर में मसले मसाइल होते हैं, आपके अम्मी अब्बू के घर में भी मसले मसाइल होंगे, आपकी भाभीयों के बीच में, भाइयों के बीच में, हर रिश्ते में होते हैं। तो फिर क्यों जाकर दूसरों का तमाशा बनाना, अपने शोहर को नीचा दिखाना। ज़ाहिर सी बात, जब आप अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाओगे, उनके बारे में कोई भी बातें करोगे, तो आप उनके खिलाफ नहीं बातें कर रहे, आप अपने शोहर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं कि सब ये सोचें कि इसके घर वाले इस तरह के, इसके अम्मी अबू, तो कहीं ना कहीं आपके शोहर को इस चीज़ की तकलीफ़ होनी है। फिर सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ही है इस चीज़ का। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम बता देते ना किसी को कि यार ये फ़लाँ शख्स ऐसा है, और घूम घुमा के बात तो पहुँच ही जाती है, तो फिर वो एक जो झिझक होती है ना, लिहाज होता है, वो ख़त्म हो जाता है कि बदनाम तो इसने मुझे कर ही दिया है, मुझे मशहूर तो कर ही दिया, मैं बहुत बुरा शख्स हूँ, या मेरे घर वाले बुरे हैं, अब मुझे किस चीज़ का लिहाज है, अब तो मैं गाली के साथ 2 थप्पड़ भी मार दूंगा तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होना, मशहूर तो बदनाम तो मैं हो ही गया। तो अब वो एक झिझक, एक लिहाज आप खुद ही ख़त्म कर रहे होते हो जब आप दूसरों से अपनी बातें डिस्कस कर रहे होते हो। आपके शौहर ने कोई राज की बात आपको बता दी, अपने बहन भाइयों के बारे में, अपनी माजी के बारे में, कोशिश करें कि वो जो राज की बातें आपको कमरे में बताई गई हैं वो आप कमरे से बाहर भी उसके अपने सगे बहन भाइयों के साथ भी शेयर मत करें।
आप जितनी भी बातें उसके बहन भाइयों से शेयर कर लो, एट दी एंड वो उसी के, आपके शोहर के बहन भाई ही हैं, उनको उसकी ही तकलीफ़ होनी कहीं ना कहीं, वो चीज़ें पलट के कहीं ना कहीं आपके ही मुंह पे आनी है। तो कोशिश करें, और इससे क्या होगा कि आप अपने शोहर का एतबार भी खो देते हो। तो शोहर के बहन भाई तो दूर की बात है, अपने अपने बहन भाइयों से भी नहीं शेयर करनी। देखें, कहीं ना कहीं वो बातें जब घूम घुमा के, जब मजाक में भी सामने आ जाती है ना, तो आपका शोहर आपसे कोई भी बात शेयर करने से पहले अपने घर वालों की कोई भी हिस्ट्री, घर वालों की कोई भी मिस्टेक, अपनी ज़िंदगी, अपनी माजी, कुछ भी चीज़ें ना वो शेयर करने से पहले 100 बार सोचेगा कि ये बंदी अपने पेट में कोई बात नहीं रख सकती, ये तो मुझे घर घर जाकर डिस्कस करती है, नशर करती है, तो बेहतर है कि मैं इससे भी ना ही शेयर करूँ। तो आप अपने रिलेशन को खुद ही ख़राब करते हो। मियाँ बीवी के बीच में 100 ऊंच नीच हो जाती है, बहुत मुश्किल हालात भी आते हैं, अच्छे हालात भी आते हैं। एक शख्स जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आपके लिए कोशिश कर रहा है 24 घंटे, जितनी कि वो कर सकता है अपने दिमाग के हिसाब से, अब जितनी कि वो कर सकता है। हर इंसान सेम नहीं होता कि अगर कोई लाखों कमा रहा है तो तुम लाखों क्यों नहीं कमा रहे। तो ये सारी चीज़ें साथ देने की ज़रूरत होती है। आप साथ दोगे तो वो आपका बनेगा। अगर आपने उसको ताने देने, आपने ही तंज करना, आपने ही उसका मजाक बनाना है, आपने ही चीज़ें डिस्कस करनी है, तो फिर आप में और दुनिया वालों में कोई फ़र्क नहीं है। फिर यही चीज़ें जब आपका शोहर करता है तो फिर आप उस चीज़ का गिला करती हैं कि मेरा शोहर मेरा साथ नहीं देता, वो मेरी बात नहीं मानता, मुझसे कोई बात नहीं शेयर करता। इसी वजह से, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसने आपको आजमा लिया हो। तो कोशिश किया करें कि अपने शोहर की, अपने ससुराल की, अपनी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे राज होते हैं जो भी आपने फ्यूचर में करना है। आपके शोहर ने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की होंगी कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, कुछ गोल्स होते हैं सेट किए होते हैं ज़िंदगी में कि हमने ये करना है, वो करना है। वक्त से पहले अपनी कामयाबी किसी से भी शेयर ना करें। वही बात है कि हसद आ जाती है, नज़र आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि आपका प्लान बदल जाता है। फिर क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ ना बातों की हद तक, इन्होंने करना तो कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें भी आ जाती हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपनी कामयाबी को शोर मचाने दिया करें। आपने खामोशी से मेहनत करनी है, अपनी कामयाबी को शोर मचाने दें, आपकी कामयाबी खुद बता देगी सबको। तो ये थी ज़िंदगी के कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे राज जो मैं कहती हूँ कि खुद के अंदर ही दफन कर लें, नहीं ज़रूरत बताने की। किसी ने भी आके आपकी जगह कुछ भी नहीं करना। जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, खुशियाँ, गम हैं, वो आपकी अपनी ही हैं। तो किसी से के साथ डिस्कस करके, मशवरे लेके मज़ीद चीज़ें ख़राब होनी है, उलझनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।